Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. So today we shall discuss about spherical mirror. Spherical mirror. So last class we have discussed about plane mirror. So suppose this is a hollow sphere. Hollow sphere. This is center and this is radius of the sphere. So if you cut a portion of the hollow sphere, if you cut this and the outer surface is coated and the inner surface is polished. Okay, outer surface coated and inner surface polished. Then this give you a mirror which is known as concave mirror. The outer surface is coated, this is coated, and the inner surface is polished. So that is your concave mirror. And if you cut another portion, you see here, and the inner surface is coated and the outer surface is polished. Outer surface polished and inner surface coated. Then this gives you a convex mirror. So both are spherical mirror. Concave mirror is also a spherical mirror and convex mirror is also a spherical mirror. So देखो, the spherical mirror are a part of a hollow sphere, a part of a hollow sphere and it is of two types. It is of two types. One is called concave mirror and the other is called convex mirror. So like in concave mirror, right? In concave mirror, the outer surface is coated and the inner surface is polished. Outer surface is coated and inner surface is polished. And in convex mirror, the inner surface is coated and outer surface is polished. So I am showing you this is a mirror, spherical mirror. You see, you are able to see a mirror. This is called your spherical mirror. You see,
So this surface is your polished and this surface is coated, you see. Yeah. The back surface is your bluish one, this is coated, and the front surface is polished. Yeah. So this is your concave mirror, you see. Concave mirror. Okay. This is your concave mirror. And similarly, there is another mirror, convex mirror, you see. So in convex mirror, you see. So this is your convex mirror. So this surface is your coated and the outer surface is polished. Okay. This is your outer surface is polished and the inner surface is coated. So this is your convex mirror. So there are two types of spherical mirror. One is called convex mirror and the other is called concave mirror. So we shall study the different parts of a spherical mirror. Okay. Likho. Some terms about spherical mirror. Some terms about spherical mirror. Number one, center of curvature. Center of curvature. So you see, this is a hollow sphere. So a part of this sphere, when it is coated outside surface and polished inside surface, this is concave mirror. So this sphere is a center. So this center of the sphere is called the center of curvature of the spherical mirror. Like the geometrical center, of the hollow sphere from which the spherical mirror is made of. The spherical mirror is made of is called center of curvature. ठीक है. तो जो स्पेरिकल मिरर जो स्फीयर का एक पार्ट है, ये स्पेरिकल मिरर जो स्फीयर का एक पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. अच्छा, उसके बाद लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. अच्छा, तो जो स्फीयर का रेडियस होगा, स्फेरिकल मिरर जो स्फीयर से बना है उसका रेडियस होगा, तो उस रेडियस को ये मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. देखो, द रेडियस ऑफ द hollow sphere, the radius of the hollow sphere from which it is made of is called radius of curvature.
ओके, तो जो होलोस्फीयर का पार्ट है ये स्फेरिकल मिरर, उसका जो रेडियस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, उसके बाद लिखो पोल, POLE पोल। तो देखो कॉनकेव मिरर जो है ऐसे होगा, देखो कॉनकेव मिरर, उसका सिंबल ये देखो कॉनकेव मिरर का। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है उसको पोल बोलते हैं। कौन सा पॉइंट? कॉनकेव मिरर का सबसे जो ये पॉइंट है, इनर मोस्ट पॉइंट है देखो, उसको बोलते हैं पोल बोलते हैं। ये जो है सेंटर ऑफ ये है उस स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मतलब क्या कि कॉनकेव मिरर का मोस्ट इनर मोस्ट पॉइंट, इनर मोस्ट पॉइंट देखो इधर से इनर मोस्ट पॉइंट है ये, तो इनर मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं उसका पोल बोलते हैं। और अगर कन्वेक्स मिरर है, अगर कन्वेक्स मिरर है तो इसका सबसे बल्जिंग पॉइंट, आउटर मोस्ट पॉइंट जो बल्जिंग पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं उसका पोल। देखो, तो इन कॉनकेव मिरर the most depressed point, the most depressed point is called pole, and in convex mirror the most bulging point is called pole. The most bulging point is called pole. बल्जिंग समझे ना, बल्जिंग जो पूरा बाहर को निकला हुआ पॉइंट, एकदम आउटर मोस्ट पॉइंट, तो उसको बोलते हैं पोल बोलते हैं। ठीक है, नंबर 4 प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस लिखो, the straight line joining the straight line joining the center of curvature and pole is called, the straight line joining the center of curvature and pole is called principal axis। देखो, तो अगर ये कॉनकेव मिरर है, देखो ये, तो ये पोल है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा कि नहीं? ये एक जो स्फीयर से बना है, ये जो इसको अगर बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे स्फीयर होगा एक तो स्फीयर का सेंटर होगा कि नहीं? तो ये सेंटर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो स्ट्रेट लाइन जॉइन करता है उस स्ट्रेट लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो स्ट्रेट लाइन जॉइन करता है उसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 5 फोकस। फोकस देखो, a ray of light, a ray of light parallel to principal axis, a ray of light parallel to principal axis after reflection from the spherical mirror, after reflection from the spherical mirror intersect or appears to intersect the principal axis, and that point is called focus।
and that point is called focus. तो देखो, तो मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो दिस योर प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तुम ड्रॉ करो। एक लाइट, रे ऑफ लाइट आता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल, इसके साथ पैरेलल आता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो ये ऐसे जाता है इधर, ये रिफ्लेक्टेड लाइट इधर जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट का नाम है फोकस। और अगर कन्वेक्स मिरर है, देखो ये कॉनकेव मिरर था, तो ये कन्वेक्स मिरर है, देखो तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ये पोल है तो उसको ज्वाइन करो ऐसे, तो ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अभी इंसिडेंट देखो इधर से आएगा, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल इधर, तो हमेशा जो लाइट है वो पॉलिश सरफेस में स्ट्राइक करता है। देखो मिरर का जो पॉलिश सरफेस है उसमें लाइट स्ट्राइक करेगा, ठीक है, इधर स्ट्राइक करने से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो लाइट, रे ऑफ लाइट आया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद देखो वो इधर नहीं आता, ऐसे ऊपर जाता है। ऐसे कन्वेक्स मिरर में लाइट देखो ऐसे ऊपर जाता है, तो यहाँ पे देखो कैसे ऐसे नीचे आता था, यहाँ पे ऐसे ऊपर जाता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर उसको हम एक्सटेंड करेंगे, देखो ये रिफ्लेक्टेड लाइट को अगर एक्सटेंड करेंगे पीछे, तो ये यहाँ एपियर्स टू इंटरसेक्ट बोलते हैं उसको, एपियर्स, ये एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं किया लेकिन उसको देखने से लगता है कि इधर से गया है जैसे, तो ये एपियर्स टू इंटरसेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे एक्चुअली इंटरसेक्ट किया है और यहाँ पे एपियर्स टू इंटरसेक्ट किया है, देखो तो ये उसका कॉनकेव मिरर का फोकस है और ये उसका कन्वेक्स मिरर का फोकस है। नंबर 6, एपर्चर। एपर्चर देखो, the diameter of the outermost circle, the diameter of the outermost circle of the spherical mirror is called aperture. The diameter of the outermost circle of the spherical mirror is called aperture. तो देखो जो स्फेरिकल मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर है, अगर इसे 3D फिगर बनाऊं, तो ऐसे शेप का होगा। देखो ये वाला बाहर वाला कोटिंग है और उसका अंदर सरफेस पॉलिश्ड है। तो ये एक सर्किल है, देखो ये, तो ये जो सर्किल का जो डायमीटर है, इस डायमीटर को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर का एपर्चर बोलते हैं। जो स्फेरिकल मिरर का आउटरमोस्ट सर्किल, सबसे बड़ा जो सर्किल है, उसका डायमीटर को बोलते हैं एपर्चर। तो ये सब ठेठ हो डिफरेंट टर्म्स हुआ स्फेरिकल मिरर के बारे में। ओके अच्छा, उसके बाद है देखो साइन कन्वेंशन है उसका, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो साइन कन्वेंशन ठीक से जानो। तो इसके ऊपर पूरा सारे डेरिवेशन डिपेंड करता है। देखो कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस का जो डेरिवेशन है ये साइन कन्वेंशन के ऊपर सारे डिपेंड करता है। तो साइन कन्वेंशन के लिए मिरर का फॉर्मूला और लेंस का फॉर्मूला अलग है, ये तो सब एक हो जाएगा। देखो देखो नंबर 1, all distances are measured from the pole of the mirror. All distances are measured from the pole of the mirror. ठीक है, कॉनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, जो मिरर हो, सारे डिस्टेंस मिरर का जो पोल से तुम मापोगे और दूसरा कहीं से नहीं मापना, पोल से मापना है। नंबर 2, the distance measured
along the direction of incident ray, the distance measured along the direction of incident ray are taken as positive and distance measured against the direction of incident ray are taken as negative. तो सोचो ये कॉनकेव मिरर है कैसे, तो ये जो लाइन दिया हो ना, ये सरफेस कोटेड है, ये बाहर अंदर वाला पॉलिश्ड है, तो कॉनकेव मिरर हुआ, तो ये पोल है, तो यहाँ से सारे डिस्टेंस मापोगे, तो इंसिडेंट रे का एलोंग मतलब इधर, सपोज इंसिडेंट रे इधर आता है, तो ये एलोंग है, तो यहाँ से इधर जितना मापोगे ये एलोंग है, पोल से मापोगे, आप प्रिंसिपल रे का एलोंग में जो मापोगे, इधर जो मापोगे सारे पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल रे का एलोंग इधर, आप इधर जो मापोगे अगेंस्ट हुआ, इंसिडेंट रे उधर आता है, उसका अगेंस्ट इधर हुआ, तो इधर से जो डिस्टेंस मापोगे ये सारे नेगेटिव होगा, देखो एलोंग वाला पॉजिटिव होगा और अगेंस्ट वाला सारे नेगेटिव होंगे। समझ में आएगी नहीं? जैसे कि सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट एक है, देखो ऑब्जेक्ट ए भी एक तो ऑब्जेक्ट है, तो पी है, तो पी ए जो है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, पी ए, पी से मापोगे ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये यू बोलते हैं, तो ये माइनस यू होता है, नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है माइनस यू। तो अगर देखो यहाँ से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये फोकस है, देखो तो पी एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ, वो है भी नेगेटिव है, देखो ये फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, देखो ठीक है। और यहाँ से इधर लोग एक थोड़े, जहाँ यहाँ से इधर जाएगा वो, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहां से नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो A1 B1 है, देखो A1 B1 इसका इमेज है, देखो ऑब्जेक्ट है बी, A1 B1 इमेज है, तो PA1 जो है ये इमेज डिस्टेंस है, ये माइनस बी है, देखो इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ से मापोगे, उधर जो मापोगे सारे नेगेटिव होगा, और इधर कुछ अगर मापना है तो पॉजिटिव होगा। नंबर 3, distance measured above the principal axis is positive, distance measured above the principal axis is positive and distance measured below the principal axis is negative। तो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो मापोगे, ए बी ऑब्जेक्ट का हाइट, देखो ए बी ऑब्जेक्ट का हाइट है, ऊपर की तरफ मापे ए बी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, देखो लेकिन A1 B1 नीचे की तरफ मापे तो ये नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितना मापोगे, हाइट मापोगे ए बी का, वो पॉजिटिव होगा, इससे नीचे जो मापोगे A1 B1 वो नेगेटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन है स्फेरिकल मिरर का, देखो उसको छोड़ के दूसरा कोई कन्वेंशन फॉर्मेशन नहीं यूज करना, देखो इसके हिसाब से सारे डेरिवेशन हम करेंगे। और तुम बोलोगे लेफ्ट की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव है, राइट की तरफ नेगेटिव है, ऐसे नहीं करना है, इंसिडेंट रे जिधर जाएगा वो पॉजिटिव है, उसका अगेंस्ट वाला नेगेटिव है। अगर इंसिडेंट रे इधर से जाता होगा, अगर ये मिरर को उल्टा देते ऐसे, ये भी उधर होता, इंसिडेंट रे इधर जाता, तो इधर वाला पॉजिटिव होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन है, देखो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन
F and R focal length, देखो F for focal length, R for radius of curvature for small aperture of mirror, small aperture of mirror। तो ये जो रिलेशन है हम एपर्चर अगर छोटा है उसके लिए हम डिराइव करें, देखो कंडीशनल, ये स्मॉल एपर्चर के देखो लिए दिस रिलेशन हम जो निकालने वाले हैं F और R के बीच और स्मॉल एपर्चर ऑफ द मिरर होना चाहिए, ठीक है। तो सोचो मान लो ये एक तो कॉनकेव मिरर है, स्मॉल एपर्चर वाला। स्मॉल एपर्चर मतलब उसका जो डायमीटर है, सर्किल का जो डायमीटर है, छोटा छोटा मिरर, मतलब छोटा छोटा मिरर के लिए। तो ये उसका पोल है, ये उसका प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, पीसी। तो पीसी तुम्हारा -R है। अच्छा, तो अभी इंसिडेंट रे एक तो ड्रॉ करो उधर, एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है। तो ये पॉइंट का मान लो M है, देखो। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उधर जाएगा, देखो। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये तुम्हारा फोकस है, देखो PF, ये फोकस है। तो PF का वैल्यू -F है, देखो फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अच्छा, तो F और R के बीच क्या रिलेशन है हम देखो निकालेंगे। तो अभी C से M को तुम ज्वाइन करो, C से M जो है उसको एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करो, ठीक है। तो व्हाट इज MC क्या है तुम्हारा, जो MC वाला लाइन, व्हाट इज MC? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, तो तुम जानते हो रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पीसी वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सिंपली रेडियस है। ये अगर स्फीयर का रेडियस है, MC इज नॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर, पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पोल से जो डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से ये डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बोलेंगे, ये सिंपली रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ठीक है। यस सर। ओके, तो MC जो है रेडियस है। तो M पॉइंट में अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस सर्किल को, स्फीयर को M पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट देखो टेंजेंट, तो टेंजेंट को रेडियस क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है बस। तो परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं, परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। तो मतलब ये जो MC है ये M पॉइंट में नॉर्मल है, देखो MC वाला जो लाइन है M पॉइंट में जो मिरर हुआ, M पॉइंट में ये नॉर्मल है, देखो। तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये नॉर्मल हुआ। MC वाला तुम्हारा नॉर्मल है, देखो ये पॉइंट को परपेंडिकुलर है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हुआ। तो हमने लास्ट क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यानी ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। समझ में आ गया नहीं? तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारी जगह पे ट्रू है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कोई भी मिरर हो, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमेशा ट्रू है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल हुआ, तो ये I हुआ, ये R हुआ, I इक्वल टू R है, देखो, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो इसके साथ ये पैरेलल है, तो ये अगर I है तो ये वाला भी एंगल I है, देखो अल्टरनेट एंगल है ये और ये, ठीक है, ये I और ये अल्टरनेट एंगल है I। अच्छा, तो अभी ये और ये समान है और ये समान है, तो ये दोनों समान है। तो ये देखो ट्रायंगल MCF एक इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, देखो ये एंगल इसके साथ समान है। तो देखो MCF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, MCF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, FC का जो वैल्यू है, सो FC का वैल्यू FM के साथ समान है।
ये साइड ये एंगल इसके साथ समान है, FC वाला FM के साथ समान होगा। अच्छा, तो अभी देखो स्मॉल एपर्चर बोला है, देखो यहाँ पे कंडीशन देखो, हमारा एपर्चर स्मॉल है। अगर एपर्चर स्मॉल है, ये मैंने इसका जो डायमीटर है सर्किल का ये छोटा है, तो मतलब एम पॉइंट P से ज्यादा दूर में नहीं हो सकता, एम पॉइंट P का पास में ही होगा। मेरा बात समझे कि नहीं? अगर मिरर का एपर्चर छोटा है, छोटा मिरर है, तो एम पॉइंट पोल के ज्यादा दूर नहीं होगा। तो ज्यादा अगर दूर में नहीं होगा एम पॉइंट P से, तो F से M का दूरी जितना होगा, F से P का भी दूरी इतना होगा, बिकॉज P और M पास पास में होंगे। देखो फॉर स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर, ये कंडीशन इसीलिए बोलता हूँ, देखो फॉर स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर, फॉर स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर, point M is close to point P. Point M is close to point P. So FM equal to FP. FM is equal to FP.